ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੁ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋਂ ਨੈਣ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ, ਨਿਹਚੋ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰ ਜਾਣਾ? ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਖਣਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ? ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਮਾਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਥਾਉ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਣਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਤੋਲ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਦੋਬੇ ਨੂਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਇਮ ਵ ਨਸੀਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਸਿਖਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच बेअंत शब्द ने ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की भी उपमा करते हैं ते ਜਿਹੜੇ गुरु जोत की भी उपमा करते हैं। एक शब्द असी एक बचन पढ़ते हैं कि दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेशिया जिन गुर नानक देओ। ये बड़ा कीमती बचन है कि जे ये समझना है ना कि गुरु नानक लई ते आए क्यों है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बचन नहीं ये कहता कि जिन्हों रब ने दिता है उसकी शोभा किवें कीती जाए, पर इस बचन विच ये दसिया कि जिहदे उत्ते गुरु नानक साहब त्रुठे ने उन्होंने भी कोई समझा नहीं सकता। फिर कोई ऐसी शै नहीं है कि जिस शै उत्ते जिस व्यक्ति जिस मनुख जिस जिग्यासू सिख उत्ते गुरु नानक साहब त्रुठ पैण तो कोई उहदे विच खामी कढ लई जाए। दीख्या कहते सिक्ख्यावां उपदेश, आख बुझाया बुझाउणा मतलब समझा देना, पूर्ण ऐ दृढ़ कर देना, घड़ देना। किस दे राही? सिफती सच समेओ, वाहिगुरु की सिफत दे नाल अंदर सारा सच भर जाना, सच दे विच रूम रूम भर जाना। किदा? तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देओ। उन्होंने कोई उपदेश नहीं कर सकता जिन्हों गुरु नानक देव जी का उपदेश हिरदे विच वस चुका है। जिस दे हिरदे विच गुरु नानक साहब की सिक्ख्या वस चुकी है उहदे उत्ते किसी का असर नहीं हो सकता, उन्होंने कोई प्रभाव नहीं पा सकता। कोई भी ना जोगी प्रभाव पा सकता, ना कोई जति, ना कोई जंगम पाउण वाला, ना कोई सती, ना कोई मुला, ना मसाणा। इस धर्म के झूठे पसारे का कोई प्रभाव उत्ते नहीं। इत्थों तक जे कोई सूरमा तेग फड़ के आके उहदे दो भी पाड़ कर दे, उहदे दो टुकड़े भी कर दे, तां भी उन्होंने उपदेश नहीं दिता जा सकता, तां भी वो डोल नहीं सकता कि गुरु नानक साहब का उपदेश इन्ना दृढ़ है। और यही उपदेश नानक गुरु गोबिंद सिंह तक वरत्या। दीख्या आख बुझाया सिक्ख्यावां गुरु नानक साहब ने रब दियां दित्तियां, सिफत सलाह वाहिगुरू दी दित्ती ते बचन किया तिनको क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देओ। कौन उपदेश सकता है? क्यों? भाई गुरदास जी ने कहा गुरु नानक साहब जब इस धरती ते आए प्रगट होए, वो लोग जेड़े गंग बनारस हिंदुआं मुसलमाना मक्का काबा जेड़े कहंदे सी एक कि जां ते बनारस जाके मुक्ति होनी है ते जे सारी उम्र हिंदू हो के गंगा का इशनान नहीं किया तो फिर पापां विच गुड़ुच है तेरा जीवन। ते जेड़े दूसरे सन वो कहंदे कि पश्चिम बल जे सीस नहीं निभाया, जे मक्के की यात्रा नहीं की, जे मक्के ही नहीं गया एक बार भी, जे कीता ही नहीं काबा दे विच जाके सिजदा, तो फिर तेरा जीवन निफल है। गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा। एक कहंदे दखण देश दे विच सिर झुका के आओ उत्थे भगवान वसदा है, एक कहते नहीं पश्चिम विच खुदा दा वस है, उत्थे जाके खुदाई की प्राप्ति होनी है। खुदा खुदा बोलण वाला बंदा जनेऊ पाउण वाले नूं काफर कहंदा है, ते जिहड़ा जनेऊ पाउण वाला है वो सुन्नत करन वाले नूं पापी कहंदा है, वो उन्होंने माड़ा आखदा है। वो कहंदा कि गां खाण वाला माड़ा है, ते वो कहंदा कि सूअर खाउण वाला माड़ा है। दोनों एक दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कहंदे हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। हिंदू कहता है कि तू काफिर है क्योंकि तू गां नूं मारदा है, गां पवित्र है साडे लई। ते फिर मुसलमान भी ये कहता है अगों कि तू भी पापी है, तू भी काफिर है, तू भी तो सूअर नूं मारदा है। पर महाराज कहते गल ये नहीं सूअर ते गां नूं मारन दी, असल गल तो यह है कि जिन्हां विच रब वस रहा तुसीं रब ही नहीं वेख रहे। तुसीं रब वेखो, तुसीं ते हक मार रहे हो दूसरियां दा। जे हक मार के जीवन बतीत कर रहे हो तो फिर महाराज कहते हिंदू वस्ते गां दा कतल है तो मुसलमान वस्ते सूअर दा कतल है। किड्डी कमाल दी गल, दोनों गल्लां करतियां। और इस गल नूं गुरु नानक साहब ही समझा सके दृढ़ करके कि हक मारन वाला भी पापी है। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे। एक पासे तुसी
गुरु वाल तुरे हो कि साडा पांडा गुरु है, ब्राह्मण गुरु है, तो एक पासे तुसी पीर वास्ते तुरे हो कि साडा खुदा पीर है। तुहाडा गुरु ते तुहाडा पीर तुहाडे वाल मुख तां करेगा जद तुहाडे अंदर सच्ची मुच्ची दूसरियां दा हक ना खाण वाली सच वाली बिरती आएगी। इनू क्या है, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा, हामा कहते हामी भरना, मुँह करना कि हाँ तू मेरा है। सच्चा मुसलमान वो है, मुसलमान मोम दिल होवै, अंतर कीमल अंतर धोवै। तो हिंदू का भी जिक्र किया कि असल हिंदू, असल सनाती, असल पंडित होवै जिहड़े अपने मन नूं प्रबोधे, अपने मन नूं सोधे। इस करके गुरु नानक साहब की आमद गंग बरारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा ते गुरु नानक साहब नूं किथे किथे गाया गया। कहंदे घर घर बाबा गाविया बज्जण ताल मृदंग रबाबा, इसलिए गुरु नानक लई ते आए। बनारस विच भी गुरु नानक नूं गाया गया, घरां घरां विच भी जिहड़े लोकी जनेऊ पाउंदे सी वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लगे, ते जिहड़े अल्लाह अल्लाह बोलदे सी, सुन्नत कराउंदे सी, खुदा खुदा करदे सी, वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लग गए। कोई छोटी गल नहीं सी। भाई गुरदास करके कहते कि इस करके असी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ये वजन नाल कहा कि गुरु सब तो पहला गुरु नानक लई ते आए, क्योंकि गंग बनारस हिंदुआ जिहड़े हिंदू सन वो भी गुरु नानक साहब नूं गाउण लग गए, ते जिहड़े मक्के वल जांदे सी वो भी गुरु नानक साहब अगे सजदा करन लग गए। भावें वो काजी रुकनदीन है, काजी जीवन है, भावें हमजा गौस है, ते भावें हिंदुआं दे विच कलयुग पांडा है, भावें कोई, भावें सज्जन है, भावें वो सब सजदा करन लग गए। घर घर बाबा गावी है वज्जण ताल मृदंग रबाबा। क्यों गुरु नानक साहब नूं ते आउणा है? अगला बचन भाई गुरदास जी करते हैं, कहते भगत वछल होए आया। गुरु नानक साहब भगती, भगत के तत्ते नूं सिहारी है, भगती करन वालियां नूं सीने नाल लाउण वास्ते आए ने। जिहड़े भगती करन वास्ते इत्थे दृढ़ ने, जिहड़े करना चाहुंदे ने जात पात तो उत्ते उठ के, फिर गुरु नानक साहब उन्होंने भगती करन विच आउण वालियां विघनां नूं रोक के उन्होंने भगती का सोमा देगा, उन्होंने भगती दृढ़ कराएगा। सारी धरती ते उन्हां दी भगती की तूती बोलेगी जिहड़ी भगती करते हैं। क्योंकि अज तो पहला भगती करन वाले जिहड़े नीवीं जात दे सन उन्होंने मार कुट के खत्म कर दिता जाता सी, उन्हां दी भगती कबूल नहीं सी, उन्होंने उठण नहीं दिता जाता सी समाज दे विच। भावें एक भगती करन वाला भी वो भी भावें भगवान नूं मनदा है, भावें वो राम बोलदा है, भावें हर बोलदा है, ते एक ब्राह्मण भी जिहड़ा वो भी राम बोलदा है, वो भी हरि बोलदा है, वेदां नूं मनदा है, पर वो नीवीं जात दा जिहड़ा भगती कर रहा है, ते मैं उच्ची जात दा, कि नीवीं जात वाले दा नाम मेरे तो उच्चा किवें हो जाएगा, मैं तो उच्ची जात दा ब्राह्मण हाँ। भगत वछल होए आया, अगे जिक्र किया पतित उदाहरण अजब अजाबा। कहंदे इस रूप च पतिता नूं उधार गए गुरु नानक साहब, जिहदे बारे कदी कोई सोच ही नहीं सकता सी। बंदियां नूं तल के खाण वाला बंदियां दे पैरां 'च सिर रखण लग गया, लोकां दे नाल, लोकां नूं छुरियां दे नाल वड्डण वाला अपने सीने नूं, अपने मन नूं, अपने कुफरां नूं वड्ड के दुनिया की सेवा विच लग गया। हुण भगत वछल की है? गुरु नानक साहब भगत वछल ने, जिहड़े भगती नूं प्यार करते हैं। गुरु नानक साहब कहंदे कोई भी होए, कोई भी होए इस धरती ते, भावें नीवीं जात वाला भी होए, जे वो उच्ची जात वाला भगती करे तो बहुत चंगा, पर जे नीवीं जात वाला भगती कर ले, गुरु नानक साहब कहंदे फिर मैं अपने चम की जुत्ती उहदे पैरां 'च पवा दांगा। ये भी गुरु नानक साहब, क्योंकि कबीर साहब का भी असीं बचन पढ़ते हैं, पर गुरु नानक साहब ने भी इसका जिक्र किया कि जिहड़ा सनात जात होए आया। महाराज जी कहंदे सनात दे विच भगती करदा, नीवीं जात क्या? महाराज कहंदे उहदे उन्होंने पैरों की जुत्ती मैं अपने चम की बना के देवांगा। तो यही तो गुरु नानक साहब गुरु नानक लई ते आए, इसलिए क्योंकि जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए ने उथे उथे भगती करन वालियां दी पैज रखी है, उथे उथे भगती करन वालियां नूं सीने ते लाया है। भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीखिया पाए। मैं लैण आया। दुनिया के लोग कहते गुरु नानक साहब तुसी खतरी, ते वो शूदर, एक खतरी शूदरां दा बूआ खड़का रहा, ये ठीक नहीं कर रहे। महाराज कहते
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜੇ, ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਣਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚਰਣਾ ਚਲਣਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ, ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੇਸਰ, ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਝੂਠ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਸਮ, ਕੁਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਰਗ ਮੈਂ, ਮਿਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਣਾ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏ ਸਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਰਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਿਓ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੱਗ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛੜੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਘਿਓ ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਜਦ ਘੁਮਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿੜਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਹੀ ਸਰਬ ਇੱਕ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਘਿਓ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਮੈਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ।
घे पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वरण में होए। ये है भगत जिन्हों कोई जात पिट की मैल नहीं लग सकती, बंदगी नूं किसी समाजिक जात की, किसी सो कॉल्ड वरण वंड की मैल नहीं लग सकती। तेरे नाम निवे रह लिव लाए, नानक तिन दर भीखिया पाए। जिन्हां दे अंदर बंदगी आई है, गुरु नानक साहब उन्हां दे दर ते खप्पर लैके वो बंदगी भगती लैन आया। यह है भगत वछल। जे गुरु नानक साहब ना जाते कबीर साहब दे, जे ना जाते रविदास जी दे, जे ना पीपे नूं लैके आउंदे राजस्थान की धरती तो, जे भगत सूरदास, ये वो सूरदास कई होए ने, जे भगत नामदेव नूं नहीं, देखो किन्ना सतगुरु जी ने बख्शिश की। ते कल्ले भगत वछल नहीं है जिन्हों पिंडां दे लोकां ने दुरकार के पापी आख के पिंड तो बाहर सुट दिता, बाहर करता, जिन्हों बिना किसी ने पूछया उहदे शरीर ते सिर तो पैरां तक कोड़ की बीमारी लग गई। जे पिंड वाले कदी तरस भी खांदे ते कुत्तियां दी तरह, कुत्ते बिल्लियां दी तरह उन्होंने रोटी पा के जांदे सन, ते दुर दुर करके कहते सन कि पिंड की सरदल ते भी तेरा परछावां नहीं पैना चाहिए। तो गुरु नानक साहब सारा पिंड छड्ड के उहदी खुरली विच, उहदी कुटिया विच जाके उहदा बूहा खड़काउंदे है। तो वह अगों कहंदा, जजमान कौन, तुहानूं किसी ने दसिया नहीं कि मेरे सरदल मेरे घर दे दरवाजे तक आना भी मना है। गुरु नानक साहब कहंदे क्यों, कहंदे मैं सिर तो लैके पैरां तक कोड़ विच मड़िया पिया, मैं हाय हाय चीस पुकार कर रहा। ये पिंड दे लोकां ने मैनू पापी कह के कोड़ी आके धक्के मार के बाहर कढ़िया। तो कहंदे गुरु नानक साहब जी जो भी हो तुसी अतिथि अंदर ना आयो, मैं बीमार हाँ। तो गुरु नानक साहब कहंदे भलिया बीमार तू नहीं, बीमार इन्हां पिंडां दी लोकां दी मानसिकता है। ये बीमार मानसिकता है। इस बीमार मानसिकता नूं गुरु साहब कहंदे इनू, इस बीमार मानसिकता नूं ठीक करना है कि चार पैसे किसी को वध आ गए, जे कोई रोगी आ जाए तो उन्होंने चक के तुसी बाहर मारोगे, जे कोई नीवी जात वाला आ गया उस तो तुसी वितकरा करोगे। महाराज जी ने फिर शब्द उचारिया, जियो तपत है बारो बार, ये है भगत वछल होए आया। एक कर्म किया गुरु नानक साहब ने इस धरती के लोगों ते, इस करके गुरु नानक लई ध्याए। एक बचन है भावें अद्धी तुक है गुरु नानक लई ध्याए, पर ये विच कितना कुछ लुकिया होया गुरु प्यारिओ। कि गुरु नानक साहब कहते तू रोगी नहीं है, रोगी ये पिंडां दे लोग ने, पिंडां दी मानसिकता इन्हां लोकां दी, जिन्हां ने वितकरा किया, जिन्हां नूं तरस नहीं आया, जिन्हां दे मन दे विच ये भाव नहीं पैदा होया। इनू साहिब जी कहते सारे जपो जियो तपत है बारो बार, कहते सिरदा सड़दा बारंबार सड़दा, तप तप खपै बहुत बेकार, तेरा नहीं, तू तो भावें तन करके त्राहे त्राहे कर रहा है, पर सच ये है कि मन ते हिरदे करके ये सारे सड़ते पे ने लोग, ये अंदरों साड़े राख होए पे ने। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। तू कला शरीर करके विलकदा है, ये रब तो सारे विछड़े हुए ने, रब की दया इन्हां विच नहीं है। ये अज भी विलकणगे तो रब की दरगाह विच भी विलकणगे, ये इत्थे भी विलकणगे तो सच्ची दरगाह दे विच निबेड़े वेले भी ये विलकणगे, क्योंकि इन्हां दे तन विच गुरु का उपदेश, बाणी का मतलब सच्चा उपदेश रब दा। जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, बहुता बोलन झखण होए, विण बोलै जाणै सब सोए। जेता मोह प्रीत स्वाद सब्बा कालख, दागा दाग अपनियां दे नाल मोह कर लिया ते दूजियां नूं वितकरा करके धक्के मार दिते। महाराज कहंदे ये रोग है, ये अग है, ये नहीं। दया भी आउणी चाहिए सिख दे अंदर। एक बचन जे गुरु का सिख बोले गुरु नानक लई ते आए, ते सिर तो लैके पैरां तक चनचनाहट छिड़ जाए गुरु नानक साहब जी के जीवन की। क्यों गुरु नानक साहब नूं ध्याया जाए? क्योंकि गुरु नानक साहब ने यह कहा सी कि दुनिया दे बंदिओ जे को डूबै फिर होवै सार। रब दे उत्ते पूर्ण विश्वास करियो। जद सारे हीले खत्म हो जाण ना, तेनू पिंडां वालियां ने चक के बाहर सुट्टा, कोई हीला नहीं, कुत्तियां दी तरह तेनू रोटी पाई, तू रब नूं चेते कीता ते रब तेनू बचाउण वास्ते भी आया। फिर रब नहीं तू तेनू इत्थे निरोआ कीता ते सारी धरती नूं तेरे राही उपदेश दिता। यह है भगत वछल। मलक भागो कहंदा मेरे कोल आओ प्रशादा छको, पर गुरु नानक साहब तो कैसा कारा कर रहे ने।
कल भी ये जिक्र ये बचन असी विचारिया सी कि सतगुरु नानक साहब जी जिहड़े इस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक वरताया, कोई रुखां नूं, कोई जनोरां नूं, कोई कुत्ते बिल्लियां नूं, कोई किसी नूं पूज रहा, कोई सूरज नूं, कोई चंद्रमा नूं, कोई किसी नूं तिलक ला लिया। गुरु नानक साहब कहंदे जे पूजा करनी है तो एक वाहिगुरू दी करो। इस करके गुरु नानक लई ध्याए, छड्डो ये वहम भरम, बाहर निकलो इस बीमार मानसिकता तो। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक वरताया, तो फिर उल्टा खेल पिरम का। कहंदे कमाल है, केड़ा खेल? कहंदा पैरी पवना जग वरताया। कहंदे भाई लालो दे अगे मलक भागो दा सिर झुकाता। जिहड़ा मलक भागो अहंकार दे विच तणिया पिया सी कि मेरे घर आके 36 प्रकार के भोजन क्यों नहीं खाधे गुरु नानक साहब ने। भाई मलक भागो दे नहीं, भाई लालो दे टिके, ते भाई लालो दे पैरां विच मलक भागो दा सिर झुकाया। ये है गुरु नानक लई ध्याए, ये है कला गुरु नानक साहब दी कि उल्टा खेल पिरम का। कि इत्थे चेला चेला रहिंदा सी, उस्ताद गुरु गुरु रहिंदा सी, पर सतगुरु गुरु नानक साहब ने लैणे नूं अपना आप बना के ते लैणे नूं अंगद कर दिता। यह है पैरी पवना जग वरताया। जगत दे विच जे सालस राय जौरी दे घर पटने जाउंदे है ते घर जाण तो पहला शर्त ये रखते ने, सालस राय जौरी तू पहला अपने नौकर दे पैरां ते मत्था टेकेगा तो फिर मैं तेनू ये बख्शिश देवांगा। क्यों? अहंकार भनना सी, मान भरना सी। इस करके गुरु नानक साहब भगत वछल ने, जिहड़े बंदगी करन वाले ने, रब दे भाव विच रहण वाले ने, गुरु नानक उन्होंने सीने नाल लाउण आया। कोई धरती की ताकत नहीं, भावें 100 साल हुज्जत कर ले दुनिया की जीवन की ताकत उन्हां नाल, संसार समय की ताकत, पर 101 सालवां चढ़ेगा तो गुरु नानक साहब उन्होंने पैरां 'च रोलेगा तो बंदगी करन वालियां नूं सिर ते चढ़ाएगा, उन्हां दे सिर ते। ये रब दी, ये गुरु नानक साहब की कला है। इस करके गुरु नानक साहब कहंदे उहदे भाव तो ताइयों इत्थों शुरू कीता सी। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, ते गुर पीर गुरु नानक साहब गुरु भी ने ते पीर भी ने। इस करके ये लफ्ज़ दोनों ਲਈ ਵਰਤਿਆ कि गंग बनारस हिंदुआं गुरु हिंदुआं दा, मुसलमाना मक्का काबा पीर मुसलमाना दा। इस करके ये दोनों लफ्ज़ ढुकते ने कि गुरपीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। कि असीं कहंदे जी असीं मांस नहीं खांदे, असीं जी वैष्णु हैगे आ, पर गुरु नानक साहब कहंदे वैष्णु ते तू तां बनेगा जद किसी का हक भी नहीं खाएगा। तू जे किसी दे नाल वधीकी करी जा रहा, गरीबां उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अगन में साड़ी। महाराज कहंदे अगन विच सड़ेगा। ये भी याद रखी, सतगुरु जी ने स्पष्ट किया, भावें ये सुलही ते सुलभी खान वास्ते, पर स्पष्ट ते ये लफ्ज़ ने ना गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे। भगत वछल होए आया, भगती नूं प्यार करन वाला आया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। तनना बुनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, की होया हिरदे वसिया पार ब्रह्म। कहते वो गिणिया गया, प्रगट हुआ साध संग भगतां मह गणिया। फिर उस तो बाद सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, की होया कहते उहदे अंदर हिरदे च हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां मह गणिया। यह विद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिलै परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। ये कोई भगत जी का उच्चारण किया शब्द नहीं है, ये शब्द गुरु अर्जुन साहब जी का उच्चारण किया होया है। भगत वछल गुरु नानक साहब भगत वछल लई आए ने, जिहड़े इत्थे भगती नूं प्यार करते हैं, रब नूं प्यार करते हैं, सच्ची भगती विच जुड़े ने, उन्होंने सीने नाल लाण आए ने। जिन्हां नूं मंदिरां तो चक के बाहर कढ़िया, मोको तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया। गुरु नानक साहब ने उन्होंने ऐसी थां बख्श दी जिस थां ते वो भी सिर झुकाउणगे, उन्हां दीआं पुश्तां भी सिर झुकाउणगियां जिन्हां ने नामदेव नूं मंदिर तो बाहर चकिया सी, वो भी सिर झुकाउणगे। महाराज कहंदे इस गल नूं याद रखियो। तो अगला बचन भाई गुरदास जी, क्योंकि इहदा जिन्ना विस्तार करिए गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कोई अंत नहीं है। भगत वछल होए आया, हर जुग जुग पैज हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया। राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया भगत वछल होए आया। अगला है पतित उदाहरण अजब अजाबा।
पतित नूं उधारण वाले ने गुरु नानक साहब, पर अजब अजाबा है। ऐसे पतित उधारे जिहड़े अज तक किसी ने सोचे ही नहीं, कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकिया। पतित नूं उधारण वास्ते पतित उधारण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा। इस करके गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ कि ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ गुरु नानक आप बख्श देण, उन्होंने कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगला बचन है पतित उदाहरण अजब अजाबा। पतित नूं उधारिया गुरु नानक साहब ने, ਜਿਹੜੇ मुनकर होए बंदगी करन वाले भी रब तो सतगुरु जी ने उन्होंने भी उधारिया। जे ओंकार ईश्वर इंदौर तो कई 100 मील 100-150 मील दूर एक मंदिर है जिसका नाम है ओंकार ईश्वर, जे उथे पंडित विकार दे विच भैड़े कर्मां कांडां दे विच दुनिया नूं पागल बना रहा सी, ते महाराज उस पतित नूं उदाहरण गए। दखणी ओंकार रामकली दखणी ओंकार रहाओ दी तुक, क्योंकि शुरुआत की थी ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल युग भये, ओंकार वेद निर्मय, सुन पांडे क्या लिखों जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। की तू पट्टी उत्ते रब दा नाम ओम पाउना, असल ते गल तां होए जे ओम तेरे हिरदे ते लिखिया जाए, जे ओंकार तेरे हिरदे च लिखिया जाए। लिख राम नाम, रब दा नाम हिरदे च लिख। पतित उदाहरण अजब अजाबा, अजब रूप दे विच उधार के गए पतितां नूं। जिहड़े सूरज नूं पानी पाउंदे है, गुरु नानक साहब खेतां नूं पाउण लग गए। पतित उदाहरण अजब अजाबा। जिहड़ी छोटियां आरतियां करते हैं जी आरती, गुरु नानक साहब पतित उदाहरण अजब अजाबा। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। जिहड़े कारी कड्डै, जिहड़ी कारी कढ़ के बह गए कि जी इहदे उत्ते किसी का परछावां ना पए, मैं उच्ची जात वाला वो नीवीं जात वाला। महाराज कहते कारी कड्डे क्या थी है कि लकीरां खिच्चण नाल की होएगा। तो जिहड़ा गोहा ते लकड़ी तू लई बैठा है, गोहा अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जियां बाज ना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। इस करके सूतक बाहरों नहीं आउंदा, सूतक ते भिट ये बाहर दी नहीं है कि कोई औरत घर दे विच नूंह राणी जे वो प्रैगनेंट हो गई है, जे वो एक्सपैक्टेड हो गई है, तो फिर उन्होंने चुल्हे चौके ते नहीं बैण देना। पतित उदाहरण अजब अजाबा नहीं, ये विकारां नूं खत्म करो कि तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी, इत्थे तग नहीं पाया। कहंदे तग ना जेबा तग ना अखी, कहंदे जिथे तग पाउणा सी उत्थे पाया नहीं। हत्थां पैरां तो पाप कर रहे हो, अखां तो विकार वेख रहे हो, जुबान तो कबोल बोल रहे हो। महाराज कहते जिथे तग पाउणा सी उत्थे तग पाया नहीं, तो बाहर दा तग पा के विखावा किया, भावें वो सिख ही क्यों ना हो। यह है पतित उदाहरण अजब अजाबा। ये कोई उधार सकदा सी? ये सूतक नहीं है कि बंदा बंदे नूं झूठ सुच दे विच मन्ने कि नहीं जी ये सूतक। महाराज कहते मन का सूतक लोभ है। पतित उदाहरण अजब अजाबा, तेरे अंदर वितकरा है, तेरे अंदर लालच है, तो तू उस लालच दे विच भी जे माँ बाप तो जे तू अपनियां तो औखा हो गया, अपनियां नाल धक्का कीता, फिर तेरे अंदर सूतक वरतिया। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। जे तू अपनी जुबान तो, गुरु रामदास जी कहते ना क्या काहे पूत झगरत हों संग बाप, जहाँ तू कबोल बोलदा किसी उत्ते वधीकी करदा, इस करके सूतक तेरी जुबान ते आ गया। मन का सूतक लोभ है, जेबा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, पर ग्रह पर तन रूप, कन्नी सूतक कन पवै लायत बारी खाए, नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। ये है पतित उदाहरण अजब अजाबा। बड़े अजब तरीके नाल गुरु नानक साहब पतितां नूं उदाहरण आए, कमाल दे उपदेश दिते सतगुरु। जो जिथे बैठा उत्थे जाके उपदेश दिते। जैनी जिथे बैठे ने, जैनियां नूं गुरु नानक साहब कहंदे किहो जिहा तुसीं सिर खोंदे हो कि राख ला के हत्थां नूं अपने वालां नूं पटदे हो। जे इवें कोई ब्रह्म ज्ञानी बन जांदा ते चढ़दे सियालां नूं कि चढ़दे साल भेडां नूं ते भेड़ रखण वाले वारी वारी मुंनदे ने, ते फिर वो क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानियां हो गईयां सारियां। ये अजब अजाबा है। महाराज जी ने तर्क दे के सच्चे मार्ग दे, ये नहीं क्या जिहदा जो धर्म है तुहानूं मुबारक, पर हिंदू सच्चा हिंदू बने। पतित उदाहरण अजब अजाबा। मुसलमान सच्चा मुसलमान होए, पतित उदाहरण अजब अजाबा।
तो जोगी जैनी कोई भी होए वो सच्चा होए, वो विखावे वाला ना होए। ये ना होए कि 50 साल रज के लहू पीता लुकाई का, रज के धक्का किया तो 51 साल कहता जी मैं सन्यास लै रहा तो सारा दान दे रहा। महाराज कहते ये तेरा दिता होया दान मारन पाहे हराम मैं होए हलाल ना जाए। हराम की कमाई 50 साल कमा के 51 साल तू भावें सन्यास दे के दान दे रहा, महाराज कहते हराम हराम ही रहेगा, वो पवित्र नहीं हो सकती। पतित उदाहरण अजब अजाबा। इस करके गुरु नानक लई ध्याए एक खिन विच करोड़ां करोड़ां विश्वास लोकां जिन्हां दी विश्वास की धारणा होर सी, जिहड़े अपने पासे तुरे होए सी, एक एक शब्द दे नाल गुरु नानक साहब ने उन्हां नूं साध दिता। सत्कार दे प्यार दे विच कोई धक्का थोड़ी कीता, कोई डांग थोड़ी वराई गुरु नानक साहब ने, बस शब्द दे तीर चलाए और इन्हां तीरां दे नाल विन के रखता, सारे पाप बार कर सुटे, अखां खोल दित्तियां। कोई किस पासे तुरिया, कोई किस पासे, कोई पितरां दी पूजा करवांदा है तो गुरु नानक साहब कहंदे आ मेरे वल्लों सूई लै जा तो जिहड़ा लंगर प्रशादा खराएगा, जिहड़ा सारा कुछ अपने पितरां नूं पुजवाएगा, आ मेरी सूई भी भिजवा दी। वो कहंदा गुरु नानक साहब ये हो सकता है कि सूई भी पहुँच जाए। महाराज कहंदे जे सूई पहुँच नहीं सकती फिर इन्ना सारा जीवत पितर ना मानै को मोया श्राद्ध कराए। ये वास्ते यह है पतित उदाहरण अजब अजाबा। जीवन का सच समझो कि तुसी बड़िया हथ दलाल के मुसवी ये करे कि अगे वस झंझाणी है, पितरी चोर करे, अपने माँ बाप नूं चोर, तू चोरी करके लियाया धन, तू धक्के नाल कमा के लियाया तो फिर तेरे मन च ख्याल आया सारे पितरां भोज करते हैं मैं भी करावां, मैं भी चीज़ां देवां, तो फिर जिस दे घर तो चोरी करके लियाया जे सच्ची मुच्ची ब्राह्मण अगे वस्तु भेज देगा तो फिर अगे जेड़े बैठे होणगे वो तो पछाण लैणगे ये कित्थों आई। कहंदे ये मेरे बच्चियां ने भेजी, तो अगले जदों घर आएगी वो पछाण जाणगे वो भलिया ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरी चीज़ है। पहलां तो भांडियां ते नाम भी लिखिया जांदा सी, नवे भांडे लए जांदे सी ते भांडियां उत्ते बकायदा नाम लिखिया जांदा सी। ते गुरु नानक साहब कहंदे अगे वस्त संझाणी है, पितरी चोर करे। महाराज कहंदे हद हो गई। ये नहीं, पतित उदाहरण अजब अजाबा। मन की पवित्रता है गुरु नानक लई ध्याए। जीवन जीवन की जाँच है। असी जिस कुर्सी ते बैठे हाँ, जिस कर्म नूं कर रहे हैं, कोई अफसर लग्या है, कोई 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 काम कर रहा है, किसी भी, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई क्लैरिकल दी पोस्ट कर रहा, कोई टीचर है, कोई प्रोफैसर है, जेड़ा कारज जिस कुर्सी ते बैठ के वो हौमै दे विच अपना जीवन गलतान कर रहा, गुरु नानक साहब उन्होंने पतित उदाहरण अजब अजाबा कि तू अपनी जेड़ी तेनू थां मिली सी तू उहदी गरिमा नहीं रखी, तू अपने फर्जां नूं नहीं निभाया। गुरु नानक साहब फर्जां नूं निभाउण दी गल करदे। सतगुरु जी ये पतित उदाहरण अजब अजाबे की गल कर रहे कि बई जेड़ा बंदा अपना काम ना करे तरीके नाल ते वो दलीलां दे। कमाल की गल लिखी सी जी अब्दुल कलाम ने, जेड़ा राष्ट्रपति साडे देश का होया, कहंदे तुसी अपनी जॉब नूं सिर झुकाओ, तुहानूं किसी अगे सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं पैणी। किड्डी कमाल की गल है। वही गुरु नानक साहब का उपदेश। तुसी अपने कर्म नूं सिर झुका लो, जिहड़ा तुहानूं कर्म रब ने बख्शिया, तो तुहानूं किसी अगे सिर झुकाउण दी लोड़ नहीं पैणी। यही तो गुरु नानक साहब का है पतित उदाहरण अजब अजाबा। जिहड़ा कर्म असी करते हैं तो असी सदा थोड़ी रहना कि असी सानूं ये चीज़ मिल गया तो असी सब कुछ कर सकते हैं, करांगे नहीं। नहीं, गुरु नानक साहब कहंदे भलिओ शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा। बाबा शेख फरीद जी का बचन, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। पतित उदाहरण अजब अजाबा। बड़े अजब तरीके नाल गुरु नानक साहब ने उपदेश दिता। इस उपदेश नूं जे दृढ़ करिए तो कमाल है, कमाल है। इक्को गल गुरु नानक साहब ने की कि धन जोबन दोए वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए, पतित करन वाला ही धन ते जोबन का अहंकार है। दूतां नूं फरमाया लै चले पत गवाए। क्यों ध्याईए गुरु नानक साहब नूं? इसलिए ध्याईए कि गुरु नानक साहब ने आप आख्या हों ढाडी बेकार कारै लाया, रात देह के वार धुरों फरमाया, ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया। गुरु नानक साहब की इस गल नूं सुनियो। गुरु नानक साहब कहंदे असानू वाहिगुरू ने अपनी दरगाह विच सदिया सी, जिन्हों असी वेई नदी का साखीकार वेई नदी का इतिहास भी कहिंदे, किस्सा भी कहिंदे।
पर ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी विच कीता है। ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया, कहते वाहिगुरु ने मैनू अपनी दरगाह महल च बुलाया सी ते 3 बचन कीते सन। 3 बचन इसलिए गुरु नानक लई ते आए है। 3 बचन कीते सन। पहला बचन कीता गुरु नानक मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुर परमेश्वर, पहला बचन। दूसरा बचन कीता जिस ऊपर मेरी नज़र उस ऊपर तेरी नज़र, ते तीसरा बचन कीता जिस ऊपर मेरा करम नानक जी उस ऊपर तेरा करम। ये 3 बचन ते गुरु नानक साहब ने उस दरगाह च ही उचारिया सी। सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले, ये है ढाडी सच्चे महल खसम। तो फिर जब गुरु नानक साहब जोगियां नूं तारण वास्ते गए, सतगुरु जी ने कि बाबा देखा ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसे आई, बाजो गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई, बाबे भेस बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। इसलिए गुरु नानक लई ते आए है। ये अरदास का पहला बचन है। तो गुरु नानक साहब फिर गुरु नानक साहब जब जोगियां दे कोल गए कि सिद्धां दे कोल जब सतगुरु जी तुरे ने, कि जब सतगुरु जी ने चौ चक्कां वल दा सफ़र किया, सुमेर पर्वत पहुँचे ने, फिर 84 सिद्ध गोरखाद, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई 84 सिद्ध गोरखाद, मन अंतर गणती वरताई। ये मन दे विच हैरान हो गए सिद्धि कि ये किवें आ गया। बाला बाला बच्चा क्या गुरु नानक साहब नूं, ये बालड़ा जा कित्थों पहुँच गया साडियां थावां ते, इनू किने दसता साडा राह, इत्थे ते कोई आ ही नहीं सकता। कहते 84 सिद्ध गोरख आद मन अंतर गणती वरताई, कि आखण सिद्ध सुन बालिया कौन वस्त तोहे इत्थे ले आई, केड़ी करामात है तेरे कोल। गुरु नानक साहब नूं बाला आके कहते कौन ले आया। महाराज कहते सुनो फिर मेरे कोल की है। हाँ जपिया परमेश्वरो भौ भगत संग ताड़ी लाई, रब दा नाम सब तो वड्डी करामात है। इस करके गुरु नानक लई ते आया है, किसी वहमां भरमां च नहीं पाया, किसी रिधियां सिद्धियां च नहीं पाया। हाँ जपिया परमेश्वरो भौ भगत संग ताड़ी लाई, सिद्ध आखण सुन बालिया अपना नाव तुम देहो बताई। तो गुरु नानक साहब ने आख्या कि सुनो फिर, कहते इस धरती ते आए ते हाँ, पर नानक नाम जपे गत पाई। नानक कल्ला नानक नहीं, जिथे नानक है उथे रब दा नाम दा जाप भी है। इस करके रब ने धुरों भेजे है कि गुरु नानक साहब ने बचन किया कि गुरु नानक साहब कहते सुन, सिद्धा नूं कहा सुनो, पर सिद्धा ने फिर यतन किया। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली में अमरे पंथ करे उजियारा। कमाल दा है, कमाल है। साड़ियाँ रिधियां सिद्धियां फिक्कियां पातियां, साडा जब तब फिक्का पाता। एक एक बचन खप्पर देता जाओ कि पानी भर के लियाओ, जाओ अगे जिथों गुरु नानक साहब जिस छप्पड़ च सुमेर पर्वत उत्ते मान सरोवर पानी भरन गए तो वह सरोवर हीरियां मोतियां दा भर दिता। तो सोचा सी कि हुण हीरे मोती लैके गां ही तुर जाणगे ये, पर गुरु नानक साहब किथे, कौन सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा झले गुरु दी झाला। केड़ा चल सकदा गुरु नानक साहब दी झाल, कोई नहीं चल सकता, वड्डे वड्डे सिद्ध नहीं चले। इस करके गुरु नानक लई ते आए है। सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा झले गुरु दी झाला। ते सतगुर कहंदे मारिया सिक्का जगत विच कीतो सु अपना पंथ निराला। शुक्र करो गुरु नानक साहब दा कि गुरु नानक साहब हैगे सन ते असी जोगी नहीं बने, नहीं तो जोगी बन जाना सी। गुरु नानक साहब ने कीतो उस पंथ निराला कीता कि गृहस्थ दा जीवन दिता। ये भी आख्या कि जोगी जी तुसी कांजी पाती है दुध दे विच, पाड़ दिता है, मत तुहाडी कुचज्जी हो गई है। गुरु नानक लई ते आए नूं किवें किवें बयान करिए गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विचों। ते समा समाप्ति वाला हर दो आलम नून नानक। भाई नंद लाल जी कहते जब तुसी नानक लिखोगे ना, लिखियो कागज़ के उत्ते नानक, कदी लिखियो नानक। एक नन्ना फिर कन्ना फिर नन्ना ते कक्का, वो कहते वो उर्दू विच लिखते हैं। कहते नानक जद मैं पाउना तो 2 नून आउंदे, नून कहते नन्ना, 2 बारी ना वरत्या जाता है। कहते वो ना मैनू किन्ने कमाल दे लिखते हैं। कहते मैनू इउं दिसदा कि इकल्ले नून ना नन्ने नहीं हैगे,
ਇੱਕ ਨਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਨੰਨਾ ਨਾਇਮ, ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਨੂਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ। ਨੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਨੇ, ਦੋ ਨੂਨ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਹੈ ਨਾਇਮ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕੁੰਠ ਮਾਨੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਾ ਕੈ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਦੋ ਨੂਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਇਮ ਵਾ ਨਸੀਰ। ਨਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂਨ ਦੂਸਰਾ ਨੰਨਾ ਇਹ ਨਸੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਤਕਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਵੇ ਡੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋਗੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਹੁਲ, ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਬਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ
ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਿਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਸ ਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਰੋਗ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਰੋਗ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਸਰਾ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ